Diagram drawing of science and have an excellent knowledge of literature, whom I am inspired with, who hardly needs any introduction. I am pleased to welcome Mr. Iftikhar Ahmad Sharif, a former chief editor, Daily Salar, and a cousin of our director, whom he addresses Bhaiyaji. Iftikhar Ahmad Salar on the mic to please speak a few words about Mr. Zahid, young, energetic, enthusiastic person, a man known for his valor and courage, and after completing his education, unlike his friends, his classmates, he didn't go in search of any government job or any job in an MNC. He wanted to be an employer rather than being an employee. When I asked him long back, so it's an honor. Thank you so much, sir. Who served as the head of the Department of Postgraduate Studies in Urdu at the University of Mysore for 23 years. He is amongst us and accepted the invitation from us, and he took the time from us, sir. We welcome you, sir. खुशी हो रही है इस मौके पर इफ्तिताह होने जा रहा है पीयू कॉलेज का। जैसे कि इफ्तिखार अहमद शरीफ साहब ने बहुत अच्छी तरह रोशनी डाली जाहिद की गैर मामूली सलाहियतों पर, आपको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने हमेशा एम्प्लॉई बनना नहीं चाहा बल्कि एम्प्लॉयर बनना चाहा। ये एम उनमें पहले ही से है, बचपन ही से मैं देखता हूँ कि उसका कि उठान का अंदाज़ा, उड़ान का अंदाज़ा बचपन ही में हो गया था। मेरे चचा कहते थे कि बहुत बुलंदियों पर पहुँचेगा, वाकई उन्होंने सही अंदाज़ा लगाया था। आज वो जिन बुलंदियों को ही मैं चाहूँगा कि वो और बुलंदियों पर पहुँचे तो शायद ही है। लोगों ने भी सुना होगा, आपने भी देखा होगा, उससे इस शेर को उन्होंने अपना boys and girls and all the esteemed guests and more respectable people out here on the dais. I'd like to, with a great joy and a lot of excitement, we have gathered today to officially open the doors of this institution, the MI College Institution, and all the credit goes to Mr. Zahid and Mrs. Noor Fatima, who have been the pioneers in this field of education, and they have always dreamt of taking this legacy forward of their father, who was himself an icon in the field of education. As we stand here, we acknowledge the significance of this institution. It's not just a building. There are aspirations which are going to get realized. Futures are going to be shaped. We aim to be a beacon of knowledge, catalyst for innovation and for personal and professional. College. The whole and soul of this institution is my beloved Mama, Mr. Fazlul Hasan Zahid. Congratulations, Mama. I would like to say a few words about the things I personally observe and learn from my beloved uncle. My mama is a very knowledgeable and a very successful person. Me personally, I observe and learn each and everything he does. He is the secretary and chairman of the best group of institutions, and now the secretary and chairman of MIPU College. So coming back to the things I observe in him, he is a very confident man. He is confident and he is sure about anything he thinks and also everything he does. He is very confident
that he shall be successful in everything he thinks. A very hardworking man. He works really hard with a lot of focus and dedication to achieve the best. A very keen observer. He observes, learns, puts into actions and achieves. Very good, Mama. I'm really proud of you. We as youngsters, we Secretary Sir to felicitate Mr. Iftikhar Ahmad Sahib. Please give them a round of applause. अभी सब ठीक है तो घाबरो टीचर I request our chairman and secretary to felicitate Mr. Javeed Agha Sahib. Member of Karnataka Urdu Academy. I request my dear chairman to अड्डा बरबड़ा इकड़े बरमा टीचर अड्डा बरबड़ इकड़े बर I request Mr. Fazlul Hasan Zahid to felicitate Mr. Mr. Fazlul Hasan Zahid to felicitate Irshad Sahib. I request our chairman to felicitate Mr. Zahir Sahib. I request our secretary and chairman, Mr. Fazlul Hasan Zahid, to felicitate Mr. Amrit sir. And most importantly, whom I am in. We welcome you, ma'am. Secretary of St. Teresa High School and famous Holy Shrine School. Next I would like to is Zuhair Zahir, Secretary of MI Pre-University College. Please come on the dais. जो है आंखों की ठंड, दिल का सुरूर, दिल का करार हमारे सर फजलुल हसन साहब की दफ्तर-ए नेकाख्तर निखत जाहिद to come on stage. New Ventures Journey. Together, the young talent needs encouragement. Next, I would like to request Kaleem Bhai, please come on stage. सामने देखो St. Fraser's School. As bright she is,
She spreads the encouragement and motivational words amongst the people whoever she meets. और जिनकी ख्वाहिश थी कि सिर्फ सर ही and an enthusiastic person who works very hard to put his thoughts in action, and this journey began in the year 2000. Next I would like to welcome Abdul Razak and accept a small token of appreciation. Sir, to be in front of you and share a few words and anchor today's program. Thank you so much, sir, and having a faith in me. And बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही पसमानदा इलाका है। जाहिद के वालिद मोहतरम मरहूम बशीर हुसैन साहब ने अपने बच्चों को ये नसीहत की थी कि बेटा स्कूल चलाओ, गरीब बच्चों को तालीम दो, और कभी स्कूल ऐसे इलाके में ना चलाओ जहां मालदार लोग बसते हैं। ऐसे इलाके का इंतखाब करो जहां गरीब लोग बसते हैं, इसलिए कि गरीबों के बच्चे बड़े कॉलेजों को, बड़े स्कूलों को जा नहीं सकते, फीस नहीं दे सकते और वो पढ़ाई भी नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखो कि जब भी स्कूल चलाओ एक पसमानदा इलाके में चलाओ, ताकि पसमानदा ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे जो हैं आकर यहाँ पर तालीम हासिल करें। और बाप की इस नसीहत को जाहिद साहब ने, उनकी बहन साहिबा नूर फातिमा, दोनों ने इस बात को ग्राह बांध ली इस बात पर, और वो इस पसमानदा इलाकों में ही स्कूल चला रहे हैं। अगर चाहते तो वो किसी भी पॉश इलाके में जो है स्कूल चला सकते थे। एक बड़ी खिदमत है, बिलाशुबा बड़ी खिदमत है। इसके लिए जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। मैं दोनों की सताइश करता हूँ। जी हाँ, मुझे यकीन है कि कॉलेज कायम करने के बाद जाहिद ने जो फैसला कॉलेज शुरू करने का किया है, ये एक हसीन ख्वाब मेरे चचा प्रोफेसर बशीर हुसैन साहब का था, जो उन्होंने पूरा किया है। बहुत से कॉलेज कायम की गई हैं, जगह जगह कॉलेज कायम किए जा रहे हैं, लेकिन अहम सवाल एक नेक जज्बे को साथ लेकर आगे बढ़ने का है, पसमानदा तबके को ऊपर लाने का है। अगर वो चाहते तो दूसरी जगह भी कायम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक पसमानदा तबका, एक ऐसे इलाके को इंतखाब किया जहाँ गरीब बच्चों को तालीम देकर, मियारी तालीम से आरास्ता करके समाज में उनको मौजू मुनासिब मकाम दिया जाए। मुझे बड़ी खुशी है कि जाहिद हाई स्कूल से लेकर पीयू कॉलेज कायम किया है। मैं चाहता हूं कि वो डिग्री कॉलेज कायम करे और आगे बढ़े। ये कॉलेज इस कदर तरक्की करे कि सारे जुनूब में इसका नाम हो। शुक्रिया। से आरास्ता करना कौम को ज़रूरी है। तालीम पर सबसे ज़्यादा जोर इस्लाम ने दिया। बदकिस्मती से तालीमी मैदान में सबसे पीछे मुसलमान है, इसलिए ये एहसास नहीं, आगे बढ़ने का एहसास नहीं, अपने आप को पहचानने का एहसास नहीं। तो जाहिर है कि इन हालात में जब मुल्क बहुत ही तब्दीलियाँ आ रही हैं, जैसे कि जिंदगी की तेज इतनी अब रवानी हो गई, बात जो सोची थी कहने तक पुरानी हो गई। इस तेज रफ्तारी ज़माने में उनको चाहिए कि ज़माने से मुकाबला करने के लिए, दूसरे कौमों से आगे बढ़ने के लिए तालीम के मैदान में आगे बढ़े। उसी वक्त हम आगे लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। ये जो ख़ानदान है बशीरुल हुसैन साहब मरहूम का, बड़ा तालीम याफ्ता ख़ानदान। ये ख़ानदान इस पसमानदा इलाके को इल्म की जेवर से माला माल कर दिया है। तकरीबन 35 साल से यहाँ इनके तालीमी इदारे चल रहे हैं। पहली मर्तबा एमआई प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज का आज इफ्तिताह हुआ है। इस मौके पर मैं जाहिद और उनके बहन नूर फातिमा को मुबारकबादी पेश करता हूँ। जिस तरह तुम लोगों ने यहाँ प्राइमरी, हायर प्राइमरी, हाई स्कूल का इदारे कायम किए, आज आपने पीयू का इफ्तिताह किया है।
कल डिग्री कॉलेज बनाइए ताकि यहाँ के बच्चों को दूर दूर जाने का मौका ना मिले। आसानी इलाका है, क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। मैं एजुकेशन के ऊपर कॉलेज से मुताल्लिक़ जितना बोलना हमारे बड़े साथियाँ जो भी थे उन्होंने बोल पाए। मैं एक कॉलेज के जो बनने जा रही है जिसका अभी अभी इब्तिदा हुआ है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और मैं उनका अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया इस बात पर, अगर ये हमारे तालीमी अदारे नहीं रहते तो, स्कूल हो कॉलेज हो जो भी हो, अगर हमारे तालीमी अदारे नहीं रहते तो हमारी कौम अब पीछे में बोल रही हमारे हाथ से निकल गई, हमारे बच्चे, हमें परेशानियाँ उठानी होंगी। ये परेशानियों को रोक लगाने के वास्ते स्कूल या कॉलेज वाले हमारे में अभिनव चाहे तो इतने पैसा में एक अच्छा खासा बिजनेस कर सकती है। मैं एक हकीकत बोल रहा हूँ, हकीकत को बोले तो मैं जमीन से कोई हूँ, स्कूल कॉलेज देख को हूँ। अगर ये काम की बाहर की कॉलेज में तो खाली वो फिर को ना फॉर्म फिल करने के हिसाब में कॉलेज छोड़ा चले जाते हैं, होता नहीं करते। इन लोग दिल लगा को काम कर रहे घर को बोल को, ये जो नौजवान भटक रही उनके ऊपर एक रोक लगा के इनको ये कौम को इन्हों बचा रही ना, ये उसके वास्ते मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। ये अल्लाह ताला से मेरी दुआ है, जिस तरह सेंट फ्रेजर स्कूल पिछले 30-35 साल से हमारे रशाद नगर में हर साल तरक्की की राह पर जा रही है, दिन ब दिन आगे बढ़े जा रहे, उसी तरह ये कॉलेज भी कामयाब रहे। और जहाँ तक हो सकता है मैं भी हमारे हाथ से क्या ताउन हो सकता है, क्या बच्चा भैया करना, मैं इसकी कोशिश करूँ। शुक्रिया आपसे। हमारी नर्सरी से लेकर 10th तक हमारे स्कूल सेंट फ्रेजर हाई स्कूल, रिपब्लिक हाई स्कूल, फेमस हॉलिस्टन स्कूल और से छोटे मोटे इदारे हैं, बहुत कायम करें। और हमारा इरादा क्या है, हमारे भाई को बच्चे माहौल से हटकर दूसरों के माहौल में नहीं जाना। हिजाब का मामला, देखो हाल ही में हिजाब का मामला आया, उर्दू का मामला आया, ऐसे बहुत से मामले हैं। हमारी स्कूल में उर्दू भी एक सब्जेक्ट रखी और दीनियात भी एक सब्जेक्ट रखी और जोहर की नमाज बाजमात सबसे पहले हमें शुरू करें सर सेंट फ्रेजर हाई स्कूल में, बाजमात बच्चों के साथ, अज़ान के साथ, इमामत के साथ सबसे पहले हमें शुरू करें। हमारा इरादा क्या है कि तो बच्चों को दीनदारी के साथ दुनियादारी हो, दुनिया में तालीम के साथ साथ दीन की तालीम हो, यह हमारा मकसद है। वो लिहाज से हमें बच्चों के लिए बहुत नामिनल फीस रखो ही, PUC फर्स्ट ईयर से लेकर डिग्री तक भी है कॉलेज है। मौलाना शाहुल हसन एजुकेशन ट्रस्ट बोल को बना को हमें ना उसके अंदर है ना ये स्कूल चला रहे हैं स्कूल, और ये कॉलेज भी आप लोगों की ताउन की ज़रूरत है और आप सबकी फुल फॉर्म मौलाना इसाक साहब कर बोल को चले ये और अंडर दी विश पब्लिक स्कूल सेंटर मैनेजमेंट इसके में लेको चला, लेकिन यहाँ पे दुआ करो।